Good morning, students. Today we are going to start with the last subtopic of this chapter, electrochemistry chapter, which is conductance, electrical conductance, electrolytic conductance, and some relations thereof, and a very important law of this chapter, which is Cool-Rash's law, and the numerical problems will be solved with it. Before I start the main part of this conductance, we need to know what is resistance. Resistance we must have learnt in physics. Resistance is nothing but, if I represent resistance by R, resistance is basically we come to know about resistance from Ohm's law. And resistance is nothing but V by I, if I am not wrong. Resistance is the constant for a particular metal, constant for a particular substance, and this is directly related to volt and the current passing through it, right? While coming to conductance, conductance is just reciprocal of resistance. Reciprocal means 1 by resistance. So, what does resistance do? Resistance resists a current flow through any metallic wire. What will conductance do? Conductance will help in conducting electricity through any solution. Or if I say it is through metal wire also, there also will be conductance obviously. But in this chapter we are interested in conductance of solutions of different types of electrolytes we will see. So this will actually help in conducting electricity, right? So we will come in details of this conductance. Conductance, if I go by the definition of conductance, it actually is the measurement of how much electricity is being conducted through a solution, right? And if I want to represent it by mathematical expression, I will start off with the mathematical expression of R, which is actually equal to rho into L by A. ये भी सबको याद होगा. R means resistance, rho means resistivity, and L by A, where L is the length of the wire and A is the area of cross section of the wire. इसी का reciprocal लेंगे तो 1 by R can be represented as G. What is G? G is the conductance. 1 by R reciprocal. तो यहाँ पर भी क्या करना है मुझे? राइट साइड में भी I need to take the reciprocal. So I can easily take it as A by L into ये जो रो है इसका जब हम रेसिप्रोकल ले रहे हैं we call it as kappa. Kappa is known as conductivity. What is conductivity? Conductivity is basically the conductance of unit volume of conductance of a solution of 1 सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, 1 डेसीमीटर क्यूब हो सकता है, 1 मीटर क्यूब हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द यूनिट विच वी आर यूजिंग द SI unit या CGS unit. It will be changed, but what is same? It should be unity. देखो इसको अगर यूनिटी कर देते हैं मतलब 1 कर देते हैं, so then what will happen? It will actually behave as like this is the conductance of unit volume of the substance, right? So this will become our conductivity. ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना है. मैं यहाँ पर लिख के रख रही हूँ कि कंडक्टिविटी है क्या? इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी. That is our conductivity और कप्पा. इसको और एक चीज भी बोला जाता है. It is also called specific conductance.
इसका एसआई यूनिट क्या है? रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट के साथ ही इसको मिला के हम इसको ओहम इनवर्स में लिख सकते हैं. ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. In SI unit, it is represented by S meter inverse. It is actually Siemens or Siemens. देखो ये यूनिट अगर हम देखना चाहते हैं तो कहाँ से यूनिट आ रहा है, मैं करके दिखा रही हूँ डेरिवेशन. देखो G इज इक्वल टू कप्पा इंटू A बाई L. So kappa is equal to G into L by A. G means ohm inverse because it is the inverse of resistance. Resistance का unit है ohm, so it is ohm inverse. L by A यहाँ पर अगर मैं सेंटीमीटर में लिख रही हूँ तो ये बनेगा सेंटीमीटर, ये बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर. So it will come as centimeter inverse. Now I hope the unit is clear to you. This you need to remember. नेक्स्ट वी विल कम टू कंडक्टिविटी. एक्चुअली डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस हम देखेंगे इन दिस चैप्टर. वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, नॉट इन डिटेल्स, एंड आयोनिक कंडक्टेंस इन डिटेल्स. इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या है? देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में हम कोई भी मेटल में जो भी कंडक्टेंस होता है थ्रू इलेक्ट्रॉन जो भी कंडक्टेंस होता है उसको हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बोलते हैं. मेटल में ही ये होता है, राइट. सो दैट डिपेंड्स ऑन 3 थिंग्स. ये कंडक्टेंस तीनों चीज के ऊपर डिपेंडेंट है. एक है कि नेचर ऑफ द मेटल, एक है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितना है मेटल के पास, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. Basically they will carry the current or charge, so obviously it will be very important. And the last one is temperature. If we increase the temperature then the conductance will decrease. With increase in temperature conductance decreases. So electrical conductance इतना ही हमें याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है मेटल में, और नेचर ऑफ द मेटल के ऊपर डिपेंडेंट है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंडेंट है, और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है. वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन आयोनिक कंडक्टेंस. आयोनिक कंडक्टेंस कहाँ पर हो रहा है? आयोनिक कंडक्टेंस इज सीन इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस. कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लो, उसमें जो कंडक्टेंस होगा वो एक्चुअली थ्रू आयंस होता है. मैं एक बहुत सिंपल सा ऑप्शन दे रही हूँ, एग्जांपल दे रही हूँ वाटर का. वाटर itself ionizes into H plus and OH minus, and in presence of one small quantity of acid or base, एक ड्रॉप एसिड या बेस के प्रेजेंस में ये H plus और OH minus बहुत स्पीड से मूव करना स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन के अंदर, वाटर के अंदर. ये मूवमेंट ही एक्चुअली जनरेट करता है आयनिक कंडक्टेंस का, राइट. तो ये आयनिक कंडक्टेंस किस किस के ऊपर डिपेंडेंट है हम देख लेते हैं. इसमें 5 डिफरेंट मतलब डिपेंडेंस है. इसका क्या क्या चीज है जिसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? फर्स्ट ऑब्वियसली द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो हम ले रहे हैं. हो सकता है कि द इलेक्ट्रोलाइट इटसेल्फ इज अ वेरी गुड आयनिक सब्सटेंस, जैसे कि NaCl, तो उसमें ऑब्वियसली आयनिक कंडक्टेंस ज्यादा होगा क्योंकि आयंस ऐसे ही बहुत अच्छे से मूव कर सकता है, राइट. नेक्स्ट इज साइज ऑफ द आयंस प्रोड्यूस्ड. अगर आयन का साइज बहुत छोटा है तो उसका मूवमेंट भी बहुत इजी होगा. आयन का साइज जितना बड़ा होता जाएगा उतना ही उसका मूवमेंट में स्टेरिक हिंड्रेंस आना स्टार्ट करेगा. सो ऑब्वियसली द कंडक्टेंस विल बी डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ द आयंस, राइट. नेक्स्ट इट इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द solvent used. Suppose we are using a solvent which itself is an ionic substance. मान लो NaCl को हम वाटर में जब डिसॉल्व कर रहे हैं तो NaCl के प्रेजेंस में वाटर itself is generating H plus and OH minus. So there may be little bit of
हिंड्रेंस, मतलब लिटिल बिट ऑफ दोनों में कोलिजन हो सकता है। जैसे कि Na+ भी फॉर्म हो रहा है, Cl- भी फॉर्म हो रहा है, H+ भी फॉर्म हो रहा है, OH- भी फॉर्म हो रहा है। तो Na+ जितना अच्छे से मूव करना चाहिए था, मे बी वो मूव नहीं कर पा रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेनी मोर आयंस इन द सेम सोल्यूशन। तो नेचर ऑफ द सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, इसको अलग से ही हम एक टॉपिक में अभी पढ़ेंगे। ये कंडक्टेंस के साथ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे डिपेंडेंट है वो अलग से ही हम देखेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशन है। एंड द लास्ट वन इज टेम्परेचर। यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंडक्टेंस भी इंक्रीज करता है, राइट। नेक्स्ट हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो आयनिक कंडक्टेंस हम बोल रहे हैं, इसको प्रैक्टिकली कैसे मेजर किया जाता है। इन योर बुक इट इज वेरी क्लियरली शोन, वेरी क्लियरली एक्सप्लेन्ड विथ अ प्रॉपर कंडक्टिविटी सेल, या इसको हम कंडक्टोमीटर बोलते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट से कंडक्टिविटी मेजर किया जाता है। इट इज नोन एज कंडक्टोमीटर, जिसके अंदर ये कंडक्टिविटी सेल होता है। इसमें होता क्या है, देखो एक सेल दिखाया जा रहा है जिसके अंदर ये ब्लू कलर का जो है, दैट इज एक्चुअली द इलेक्ट्रोलाइट वी आर यूजिंग। फ्रॉम बोथ द साइड्स देयर आर 2 इलेक्ट्रोड विच इज प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, मतलब प्लैटिनम मेटल के ऊपर प्लैटिनम का ही लेयर डाला हुआ है, बिकॉज इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर, इसीलिए प्लैटिनम यूज किया गया है। और बाहर से हम इसको कनेक्ट किए हैं वायर के साथ, राइट। तो जब भी इसमें इलेक्ट्रिसिटी आएगा, अंदर में क्या होगा, आयंस का मूवमेंट स्टार्ट होगा। ये कैसा मूवमेंट चल रहा है कि क्या मतलब हाउ मच दे आर मूविंग, दैट इज ओनली शोन बाय द इंस्ट्रूमेंट एंड वी कैन मेजर द कंडक्टिविटी वेरी इजीली। अब इसमें क्या है कि देखो, ये जो एक बंद एक कंटेनर है, एक प्रॉपर कंटेनर है विच इज क्लोज्ड कंटेनर, तो दिस कंटेनर मस्ट हैव अ कन्फाइंड एरिया, एक स्पेसिफिक एरिया होगा, और ये दोनों जो इलेक्ट्रोड है, दोनों के बीच में एक स्पेसिफिक डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है, राइट। तो एक एरिया भी कांस्टेंट हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो इसका है दैट इज आल्सो कांस्टेंट, एंड ये जो लेंथ है दोनों के बीच में वो भी कांस्टेंट हो जाता है कोई भी एक कंडक्टिविटी सेल के लिए। तो उसी को जब L और A कांस्टेंट हो जाता है, दैट L/A इज एक्चुअली नोन एज द सेल कांस्टेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंडक्टिविटी सेल, मतलब वो एक सेल के लिए कांस्टेंट हो गया, वो हम चेंज नहीं कर पाएंगे, राइट। दैट मीन्स इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट इट इन दैट सेम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, अगर हम उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, तो हाउ विल यू बी एबल टू रिप्रेजेंट इट इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। वी विल सी इट लाइक, मैं पहले एक्सप्रेशन क्या लिखी थी, G इज इक्वल टू कप्पा इंटू A/L, राइट। तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि L/A दिस इज द सेल कांस्टेंट, it is becoming constant for a particular cell, so it is known as cell constant. So I can easily write that specific conductance या conductivity is equal to cell constant into conductance. This is the mathematical expression which is very important for us to remember. नेक्स्ट और एक टर्म हम यूज करेंगे एक्चुअली इन दिस चैप्टर, विच इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा एम से, लैम्डा एम लिख के। व्हाट इज दिस क्वांटिटी, मतलब इसका डेफिनेशन क्या है। इसका डेफिनेशन यही है कि जब मैं जो कंडक्टिविटी सेल के अंदर मैं थोड़ा सा कुछ एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन दिखाई थी, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन जब 1 मोलर होगा, मीन्स इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में सॉल्यूट हम ले रहे हैं 1 मोल पर लीटर में,
अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो जाता है तो उसका जो कंडक्टिविटी हम मेजर करेंगे उसको हम बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी. मोलर कंडक्टिविटी इज एक्चुअली द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन having 1 mole substance dissolved in 1 liter, or we can write it as 1 molar concentration. Clear? Now we will see a simple relation between molar conductivity and specific conductance या conductivity. ये बहुत important relation है, derivation important नहीं है, relation को याद रखना बहुत important है, right? तो देखो, अगर हम बहुत simply इसका relation को लिखेंगे तो molar conductivity is actually equal to kappa by C, जबकि ये C बन रहा है 1 molar. Am I right? Definition हम क्या लिखे थे कि molar conductivity is the conductivity of 1 mole solution present in 1 liter, dissolved in 1 liter, that is 1 molar. So it is actually equal to kappa by C. जब C के 1 molar हो रहा है तभी इसके साथ equal हो रहा है, right? Now we will, दिस वन तो ऑलरेडी नोन, तो मैं और एक बार लिख दी, देख लो. स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी क्या है कि यूनिट वॉल्यूम कोई भी सोल्यूशन का जो भी कंडक्टेंस आ रहा है तो वही स्पेसिफिक कंडक्टेंस है. अब हम ले रहे हैं C मोल कोई भी सब्सटेंस को. सपोज हम 1 लीटर में डिसॉल्व किए. 1 लीटर की जगह में 1 डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकती हूँ, राइट? तो 1 लीटर में अगर हम C मोल सब्सटेंस को डिसॉल्व किए तो उसका कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी बन रहा है कप्पा, क्योंकि इसका वॉल्यूम है यूनिट वॉल्यूम. यूनिट वॉल्यूम जब भी होगा तब भी वो कंडक्टिविटी से रिप्रेजेंट होता है. एम आई राइट? सो वी कैन राइट दैट C मोल सब्सटेंस इन 1000 सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब को अगर हम सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर रहे हैं तो डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर मीन्स 10 सेंटीमीटर. सो 1 डेसीमीटर क्यूब मीन्स 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में है, विच इज एक्चुअली इसका कंडक्टेंस है कप्पा. यहाँ पर लिख रही हूँ कंडक्टेंस ऑफ C मोल सब्सटेंस इन 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कप्पा. दैट मीन्स if 1 mole substance is dissolved in 1000 centimeter cube solution में तो वो हो जाएगा कप्पा डिवाइडेड बाय C. कोई कंफ्यूजन नहीं है. इसके बाद ये वाला लाइन देखो, एम आई राइट? 1 मोल को लिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब में. 1000 सेंटीमीटर क्यूब मीन्स एक्चुअली इक्वल टू 1000 ml. मैं इसको रिप्लेस कर सकती हूँ एज 1000 ml. सो इफ आई टेक 1000 ml एज द सोल्यूशन, यही देखो एक्चुअली लैम्डा है. लैम्डा इज इक्वल टू कप्पा बाई C. ये वाला रिलेशन आ गया. यही लैम्डा है क्योंकि यहाँ पर 1 मोल सब्सटेंस हम ले रहे हैं. 1 मोल सब्सटेंस का कंडक्टिविटी मीन्स इट इज कप्पा बाई C. इट इज एक्चुअली लैम्डा m. सो लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा बाई C. Next, another relation we will derive, which is lambda m is equal to 1000 kappa by C, where this C is actually expressed in terms of molarity, and this kappa we are considering its unit is in centimeter inverse, right? तो ये कैसे आता है देखो, पहले जो कप्पा का रिलेशन हम यहाँ पर लिखे हैं वहाँ पर कप्पा का रिलेशन में कप्पा इज इन साइमेंस मीटर इनवर्स, राइट? क्योंकि SI यूनिट में है, ये SI यूनिट में हम लिख रहे हैं. तो यहाँ पर साइमेंस मीटर इनवर्स में है. तो ये C किस में है? मोल पर मीटर क्यूब, मीटर -3, क्योंकि ये भी है कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ SI यूनिट, राइट? और लैम्डा m फिर किस में आएगा?
साइमन्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में आएगा। इसका है साइमन्स मीटर इनवर्स, इसका है मोल मीटर टू द पावर ऑफ -3, सो दिस विल कम एज साइमन्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, राइट। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो हम इसको 1 मोल पर मीटर टू द पावर ऑफ -3, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, इसको हम किस में लेके जाना चाहते हैं? सीजीएस यूनिट में। सीजीएस यूनिट में मतलब सेंटीमीटर क्यूब में लेके जाना चाहते हैं, राइट। सेंटीमीटर क्यूब में हम कैसे लेके जाएंगे? देखो हम अगर मोलारिटी से यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, ये हमें पता है। सो वी आर एक्चुअली कन्वर्टिंग इट इनटू 1000 लीटर डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब इनटू मोल पर लीटर। ये कहाँ से आया? देखो लीटर इज एक्चुअली गेटिंग कंसेप्ट एंड दिस इज एक्चुअली कमिंग एज मोल बाय मीटर टू द पावर ऑफ -3। 1000 कहाँ से आया? हम यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर जो डेसीमीटर क्यूब है, मीटर से हम डेसीमीटर क्यूब में लेके जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली 10 to the power of 3 will come. So I am replacing this here in C, 1000 liter minus meter to the power of -3 into molarity. I can replace it, कप्पा जैसा था वैसा ही रहेगा। Clear? If this I simplify by keeping only molarity in the denominator, तो ये 1000 ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा? This will come as in मीटर टू द पावर ऑफ -3 इज विल बी चेंज इनटू, मैं इसको थोड़ा सा सिंपल करके दिखाती हूँ। देखो यहाँ पर लीटर है, तो इफ आई एम चेंजिंग इट दिस लीटर इनटू ml, आई एम शोइंग दिस। यहाँ पर एक स्टेप जंप है एक्चुअली, तो मैं एक स्टेप दिखाती हूँ करके। देखो कप्पा जैसा था वैसा ही रहेगा, कप्पा का कोई चेंज नहीं कर रही हूँ। नीचे मोलारिटी जैसा था वैसा ही रहेगा। यहाँ पर देखो 1000 लीटर डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब है, 1000 लीटर डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब है। मीटर क्यूब के जगह में मैं सेंटीमीटर क्यूब लाना चाहती हूँ, सो आई विल रिप्लेस इट बाय दिस, राइट। तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर क्यूब एंड इट विल बी कैंसल्ड एज दिस। सो आई एम गेटिंग 1 to 10 to the power of 3, 1000 आ रहा है। देखो 1000 इज कमिंग अप सेंटीमीटर क्यूब बाई लीटर। दिस इज द फाइनल रिलेशन वेयर वी कैन राइट लैम्डा m इज इक्वल टू 1000 कप्पा डिवाइडेड बाई c, where we are expressing in everything in terms of centimeter unit. This one you need to remember क्योंकि यहाँ से numerical problems आता है। Now at the almost the end part की variation of molar conductivity कैसे होता है concentration के साथ। मैं पहले ही बता रही थी कि concentration के साथ molar conductivity changes but it does not change all homogeneously, सभी का एक ही जैसा नहीं होता है। molar conductivity एक्चुअली मतलब हम कोई भी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कोई भी V ले सकते हैं एज अ कांस्टेंट। इसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 2 इलेक्ट्रोड के बीच में कांस्टेंट रखना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि मोलर कंडक्टिविटी में 1 मोल सोल्यूशन 1 मोल सॉल्यूट या 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी इज एक्चुअली कप्पा इंटू ए बाई एल अगर हम लिख रहे हैं तो यहाँ पर ए इज एक्चुअली V, दैट इज द वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें वॉल्यूम में, और एरिया ऑफ मतलब लेंथ जो इसका डिस्टेंस जो है दैट इज 1। सो आई कैन राइट लैम्डा m इज इक्वल टू k इंटू V लिख सकती हूँ मैं। तो देखो लैम्डा m मतलब मोलर कंडक्टिविटी वॉल्यूम के साथ कैसे इलेक्ट्रोलाइट का जो वॉल्यूम है उसके साथ कैसे चेंज हो रहा है, वॉल्यूम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कॉन्सेंट्रेशन के साथ एक्चुअली इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कॉन्सेंट्रेशन के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 बाई लैम्डा m। क्यों? अगर मैं वॉल्यूम इंक्रीज कर रही हूँ सोल्यूशन का तो धीरे धीरे करके कंसेंट्रेशन लोअर होता जाएगा। That means it should show this type of value as it will decrease, धीरे धीरे करके डिक्रीज होता जाएगा, राइट। It decreases.
हाउ डज इट डिक्रीज, इसका भी एक फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला है कि लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए रूट सी। ये लैम्डा एम नॉट क्या है, इसको हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है। ये है क्या, जब भी हम कोई भी सोल्यूशन जो भी ले रहे हैं उसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन में उसको डाइल्यूट करते हैं, मतलब इतना ही डाइल्यूटेड सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट मिलने का चांस बहुत कम है, उसको हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलते हैं। उसमें भी कुछ ना कुछ आयंस तो प्रेजेंट रहेगा और वो कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी शो करेगा, दैट इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दैट इज लैम्डा एम नॉट इज इक्वल टू ए रूट सी। ये ए जो है ये कांस्टेंट है एंड ये ए एक्चुअली डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के लिए अलग अलग वैल्यू दिखाते हैं। तो देखो इसको अगर हम y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करेंगे तो y इन द y एक्सिस लैम्डा m को हमें प्लेस करना है और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन को हमें प्लेस करना है। वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन हैविंग अ नेगेटिव स्लोप। देखो नेगेटिव है तो नेगेटिव स्लोप दिखाएगा, ऑब्वियसली इट शोज अ नेगेटिव स्लोप वेयर दिस इंटरसेप्ट इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट। इसका मतलब है जो भी प्लॉट हमें प्रैक्टिकली मिलेगा उसको अगर हम एक्सट्रापोलेट करेंगे तो वो y में जहाँ पर कट करेगा वही है उसका लैम्डा एम नॉट। यहाँ से ये वाला ग्राफ से हमें कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक्चुअली शोज दिस टाइप ऑफ वेरिएशन। सो कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम नॉट हम यहाँ से निकाल सकते हैं, बहुत इजी होता है। ये एक्चुअली लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के साथ इसके ऊपर डिपेंड करके इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है विच इज नोन एज कोलरश's लॉ। द लॉ वाज प्रपोज्ड बाय कोलरश's लॉ, जिन्होंने क्या बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का अगर हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता है, मान लो कि मैं NaCl को लेके काम कर रही हूँ, उसका अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन में NaCl का टोटल जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिखाता है दैट इज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज एक्चुअली इक्वल टू द समेशन ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी। मीन्स limiting molar conductivity of any strong electrolyte at infinite dilution is actually equal to the summation of its constituent ions limiting molar conductivity। तो यहाँ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज हमें मतलब मिलता है, वो क्या है कि हम अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का दोनों का अगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमको पता है तो इजीली हम कोई भी कंपाउंड का कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वी कैन कैलकुलेट ओनली बाय समिंग अप दिस टू। इसका एप्लीकेशन हम देखेंगे, मतलब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके हम देखेंगे कैसे इसका न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है। तो इसमें एक्चुअली एक प्रॉब्लम है कि ये कोलरश's लॉ इट इज नोन ऑल्सो एज इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। इसमें माइग्रेशन ऑफ आयंस का जो कंडक्टेंस है वो इंडिपेंडेंट लिया जाता है, एज्यूम किया जाता है कि Na+ के माइग्रेशन के ऊपर Cl- का कंडक्टेंस का या उसका मूवमेंट का कोई भी इफेक्ट नहीं है, राइट। ये लिया जाता है एज दे आर इंडिपेंडेंटली दे कैन माइग्रेट, ओके। इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात की। वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में एक प्रॉब्लम है कि देखो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ऐसे तो कॉन्सेंट्रेशन के साथ लैम्डा एम को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन हम जितना कम करेंगे उतना ही मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में एक चीज है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में एक्चुअली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर माइग्रेशन ऑफ आयंस डिपेंड करता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, अल्फा है। जो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जबकि बहुत लो होता है, तो जो जितना भी हम उसको डाइल्यूट करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन जितना लो करेंगे, हम सबको पता है अल्फा इज इक्वल टू K/√C। तो ये √C मतलब क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन जितना कम हो रहा है उतना ही उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होता जा रहा है। तो अगर इंक्रीज होता जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब मान लो कि एसिटिक एसिड है CH3COOH है, तो उसका अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज किया तो फॉर्मेशन ऑफ CH3CO- और H+ भी ज्यादा होगा। ये ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली उसका कंडक्टेंस भी इंक्रीज करेगा।
तो ये होता कैसे है, इट एक्चुअली शोज अ ग्राफ ऑफ दिस टाइप। लैम्डा एम को अगर हम सी के रेस्पेक्ट में, इट विल शो अ हाइपरबोलिक ग्राफ जिसमें क्या आता है, देखो मतलब हम कंसंट्रेशन को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, मतलब कंसंट्रेट करेंगे सोल्यूशन को, तो भी लैम्डा एम धीरे धीरे करके डिक्रीज करेगा और एक टाइम के बाद इट विल कम कांस्टेंट। और अगर कंसंट्रेशन का हम डिक्रीज करेंगे तो मतलब डायल्यूट करेंगे तो लैम्डा एम धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और बढ़ते बढ़ते एक जगह में जाके ये भी कांस्टेंट वैल्यू ही शो करेगा। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस ग्राफ। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए और एक रिलेशन हम लिख सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली एक्चुअली इट वाज डन, एंड दिस रिलेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, जिसमें क्या है कि मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मतलब इनफाइनाइट डायल्यूशन में उसका जो मोलर कंडक्टिविटी है, ये दोनों का रेशियो करेंगे तो हमें अल्फा मिलेगा। एक प्रॉब्लम वीक इलेक्ट्रोलाइट में है कि हम यहाँ इसके ग्राफ से हमें लैम्डा एम नॉट नहीं मिलेगा, जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ग्राफ से ही मिल रहा था, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट में नहीं मिलता है। तो नहीं मिलने के कारण हम एक्चुअली क्या करते हैं कि कोलराशेस लॉ अप्लाई करके वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम नॉट ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक मैं एग्जाम्पल दिखाती हूँ, मैं न्यूमेरिकल से ही एक एग्जाम्पल दिखा रही हूँ, बट आई विल नॉट गिव यू एनी आर्बिट्रेरी, मतलब यहाँ से एक प्रॉब्लम इन टेक्स्ट वाला प्रॉब्लम जो है उसी को सॉल्व करके दिखाती हूँ कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। देखो, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मिथानोइक एसिड का एक मोलर कंडक्टिविटी दिया गया है, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ढूंढने के लिए बोला है, और गिवन क्या क्या है हमारे पास, लैम्डा नॉट H प्लस एंड लैम्डा नॉट ऑफ HCO माइनस। मतलब हमें मिथानोइक एसिड इंटेक्स का जो प्रॉब्लम है, इंटेक्स प्रॉब्लम नंबर 3.9, आई एम राइटिंग द गिवन वैल्यूज फर्स्ट। गिवन वैल्यूज क्या क्या है, देखो लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस है इज इक्वल टू 349.6 साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, and lambda naught of HCOO minus is equal to 54.6 Siemens centimeter square mole inverse. This is given. Methanoic acid का मतलब होता है formic acid. This is methanoic acid, so it will be dissociated into H plus and CO minus, right? HCO माइनस। तो देखो ये दोनों का ही दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट आयन का, तो आई कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ मिथानोइक एसिड। इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें कहाँ से मिलेगा, लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ HCO माइनस, यहाँ से हमें मिल जाएगा। यही कोलराश लॉ का एप्लीकेशन है, तो आई कैन राइट 54.6 प्लस 349.6 इज इक्वल टू 2। Siemens centimeter square mole inverse. So lambda naught we have found out. Lambda m again given. Lambda m है 46.1 s centimeter square mole inverse, right? And मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है, देखो कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है, राइट। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस मच, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिथानोइक एसिड इज दिस। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन इजीली फाइंड आउट द अल्फा बाय पुटिंग दिस फॉर्मूला, लैम्डा एम बाय लैम्डा एम नॉट, ये वाला फॉर्मूला। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, सो यहाँ पर बैठ जाएगा 46.1, यहाँ पर आएगा 404.2 एंड सो इट विल कम एज 0.114 इज अल्फा। इसका कोई तो यूनिट नहीं होगा क्योंकि इसका भी यूनिट और इसका भी यूनिट सेम है, तो दे विल कैंसिल ईच अदर। सो दिस इज आवर फर्स्ट आंसर एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वी गॉट। Next question was what is the dissociation constant? Find out the value of dissociation constant of this acid, methanoic acid का dissociation constant।
तो मिथानोइक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट हम कहाँ से मिलेगा? ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, जो हम लिखे थे थोड़ी देर पहले. व्हाट वाज द लॉ? इट वाज Kn अल्फा इज एक्चुअली इक्वल टू K/C रूट, राइट. जहां पर ये Ka है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड. तो यहाँ पर देखो अल्फा की वैल्यू हमें पता है 0.1114 आ गया है पहले का जो हम निकाले हैं वहां से. Ka का वैल्यू इज नॉट नोन टू अस. कॉन्सेंट्रेशन देखो, द कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन एज 0.025 mole per liter, right? So we need to solve this one and you will get the answer as dissociation constant का जो वैल्यू आएगा. So if we solve it, we will write here 0.025. both side स्क्वायर कर रहे हैं हम, तो 0.1114 का 0.114 का स्क्वायर कर रहे हैं हम. 0.114 का हम स्क्वायर ले लिए हैं. 0.114 का स्क्वायर के साथ 0.025 वी विल मल्टीप्लाई एंड वी विल गेट द आंसर एज K इज इक्वल टू 3.24 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर. दिस इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड. सो बोथ द आंसर्स वी हैव गॉट. ऐसे ही न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व करना है. बुक के पीछे एक्सरसाइज में भी देखना कि बहुत सारे टाइप्स का न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है, जिसमें से कोलराश लॉ का एप्लीकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई विल सॉल्व सम मोर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड आई विल सेंड यू द वीडियोज. यू गो थ्रू दिस चैप्टर, गो थ्रू द कंडक्टेंस पार्ट. अब हमारे पास एक ही चीज छूट गया है, दैट इज कोरोजन है और बैटरीज है. I will give you another video on that and then we will solve some numerical problems. Thank you.